Hello again. So now we will see 9 principles of constructivism. Based on these principles, actually the theory of constructivism is built. So the first principle again, as I have told you, we are on page number 27. So all these principles are there. So one by one we will discuss all the 9 principles on which constructivism is based on. So first principle is learning is an active process in which the learner uses sensory input and construct meaning out of it. Means senses are involved whenever it comes to learning at that moment of time. Generally when it comes to classroom mode, and we are just telling something, just like now in this particular mode wherein I am just speaking something, you are trying to listening and watching. That's two, means two senses we are using. We are watching with our eyes and we are listening with our ears, means two senses involved. But what happens is, if we'll if you might have sometime in the classroom mode I might have tell you about sensory acuity, wherein we have that kind of model which is called as a WAC model. WAC means visual, auditory and kinesthetic, wherein actually most of the time we give all these three kind of experiences to the learner, because generally what happens, the more number of senses involved in the process of learning, that learning become more effective and more perfect. So that's why most important thing is we need to actually involve the senses. Now the most important aspect why we need to involve senses is there is no other way to actually give information to brain, because what happens is we think that these are, means senses are something through which actually we are watching something with our eyes, but actually we are not. These are just the windows through which actually we are communicating with our brain. Our retina is actually capturing the image, and then that image get processed and it is sent to brain. Actually it's not processed, it directly sends to brain, and brain process it, and then brain understand what exactly that particular thing is. Brain identify and then we understand, but our speed is so fast that we don't understand that there are some processes in between. It process very very fast. So the thing is, we have just taken input and we have got output from eyes, but actually the procedure, what kind of process is there, that is done with the brain only. In the same way, our ears are just a window or the mechanism of just taking the voices inside. There is eardrum inside, that actually there are waves in the sound, that ether in our ear actually capture those waves, and that's how captured wave in the form of sound is actually given to the brain understand, process that sound, and then we come to know that this sounds like that. So that's how actually we hear. Now the thing is, if we are listening through brain, we are watching through our brain, we are feeling through our brain, we are testing smelling through our brain, means actually whatever input are given, that input are come from this different senses, this 5 different senses. And as there is no other way other than senses to get information in, so the most important aspect of learning is knowledge of senses and involving senses within education. So that is what is the first aspect of constructivism, that we should take care of sensory acuity. In NLP we called it WAC model, whatever just I have explained you. Now we will move on to the second principle. Second principle is children learn to learn as they learn. जैसे वो सीखते हैं वैसे ही वो सीखेंगे. आप उनको कितना भी कंपल्शन कर लो, इम्पोज कर लो, वो आपके तरीके से नहीं सीखेंगे. तो बेसिक प्रिंसिपल आपको याद रखना है कि बच्चे नेचुरली सीखते हैं तो उनको नेचुरली ही आपको सिखाना पड़ेगा. उनको खेलना अच्छा लगता है तो वो खेल खेल में ही अच्छा सीखेंगे. जो चीज़ें वो करना चाहते हैं उस वे से ही आपको उनको सिखाना पड़ेगा. आप आपकी चीज़ें, यानी कि आपकी मेथड उनके ऊपर लाद नहीं सकते, आप इम्पोज नहीं कर सकते उनको. तो वो जैसा सीखते हैं वो वैसे ही सीखेंगे, और ये जो प्रोसेस है वो सेल्फ डायरेक्टेड और नेचुरल प्रोसेस है. दैट इज सेकेंड प्रिंसिपल. थर्ड प्रिंसिपल, द क्रूशियल एक्शन ऑफ कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग इज मेंटल.
यानी कि अभी जो मैंने सेंसरी के बारे में बताया, तो वो जो प्रोसेस है जिसमें मैं कोई भी क्रूशियल मीनिंग को अंडरस्टैंड करती हूँ, तो वो प्रोसेस ही तो मेंटल है ना। माइंड से मैं अंडरस्टैंड करूँगी, मैं आँखों से, नाक से, कान से अंडरस्टैंड नहीं कर पाती, मुझे तो अंडरस्टैंड ब्रेन से ही करना है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस ब्रेन करेगा। तो इसमें सारा माइंड है, वही सब में इन्वॉल्व है। तो अगर माइंड ही जगह पे नहीं है तो क्या मैं सिखा सकती हूँ, क्या मैं मेरी लर्निंग को इफेक्टिव कर सकती हूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो प्रोसीजर है जिसमें मैं मीनिंग को कंस्ट्रक्ट करती हूँ, वो मेरी प्रोसेस ही मेंटल है। और वो जो, क्योंकि वो मेंटल प्रोसेस है तो वो हर एक के कैपेबिलिटी के हिसाब से होगी। हर किसी का अगर आईक्यू अलग है, उसका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अलग है, उसकी कैपेसिटी अलग है, तो उसके हिसाब से वो चेंज होगा। मैं अभी जो समझा रही हूँ, हर कोई वो अपने हिसाब से उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा। किसी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो एक तरीके से कोई लेगा, कि कोई दूसरे तरीके से लेगा। यानी कि ये जो मेथड है ये मेंटल एबिलिटीज़ पे डिपेंड है, और जिसका जो परसेप्शन है, देखने का व्यू है, उस हिसाब से एक्चुअली वो सारी जो प्रोसेस है वो चलेगी। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रिंसिपल है, ये थर्ड प्रिंसिपल था। अभी बढ़ते हैं फोर्थ प्रिंसिपल की तरफ, यानी कि लर्निंग इन्वॉल्व्स लैंग्वेज। तो जब तक आपका लैंग्वेज पे कमांड नहीं है तब तक लर्निंग की प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है। अगर बच्चा, समझो आपके पास 2 साल का बच्चा आता है नर्सरी में, उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट अभी तक हुआ ही नहीं है, और उसे उसका जो लोकल लैंग्वेज है उसके अलावा और कोई लैंग्वेज समझ में ही नहीं आता है, तो इवन कम्युनिकेशन विल बी अ बिग बैरियर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़, आपको उनकी लैंग्वेज समझनी चाहिए, उनको आपकी लैंग्वेज समझनी चाहिए। और ये जो लैंग्वेज है उसमें एक टीचर का बहुत ज़्यादा प्रभुत्व होना, उस भाषा के ऊपर प्रभुत्व होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप किस तरह से कम्युनिकेट करते हो वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब ट्रेनिंग की बात आती है, टीचिंग की बात आती है, तो जब तक आप बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो कि आपको क्या बताना है, मतलब सामने वाले के दिमाग में आपको क्या डालना है, उसमें अगर आपकी लैंग्वेज जो है वो, अगर आपका एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल नहीं है ना, तो फिर वो जो मैसेज आपको देना है वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा, या फिर जो मैसेज देना है वो उस तरह से नहीं जाएगा। इसलिए लैंग्वेज के ऊपर कमांड होना एक टीचर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो कंस्ट्रक्टिविज़म का थ्योरी है उसमें लैंग्वेज के लिए फोर्थ प्रिंसिपल में बताया गया है कि लैंग्वेज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है व्हेन इट कम्स टू कंस्ट्रक्टिविज्म। Moving on to the next principle, that is learning is a social activity. Now they says that learning is social activity. ऐसे नहीं है कि अकेले नहीं सीख सकते, बट जनरली जैसे हम बचपन से ही हमारे पेरेंट्स, हमारे जो सिबलिंग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें तो हमने उनसे ही सीखी है। लाइफ स्किल्स तो लगभग 70-80% हम सारे उन देख के ही सीखते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर हमारे आजू बाजू कोई नहीं है तो हम क्या सीखेंगे। जैसे समझो जंगल बुक का एग्जांपल लिया, तो मोगली जो है उसने क्या देखा बचपन में, उसने वो एनिमल्स देखे, उसने उनकी ही लैंग्वेज सीखी, तो वो वही लैंग्वेज बोल पाता है, वो उनकी तरह ही रहता है, वो कपड़े नहीं पहनता है, वो मतलब जब वो इंसानों की दुनिया में आता है, हालांकि वो इंसान है, उसकी बॉडी बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर हमारी तरह ही था, लेकिन फिर भी वो सर्वाइव नहीं कर पाया। क्यों सर्वाइव नहीं कर पाया? क्योंकि हमारा जो दिमाग है इसमें मेंटल पैटर्न होते हैं, और पैटर्न जो है जिस टाइप की चीज़ें वो देखता है उसके बेसिस पे बनते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ये एक सोशल एक्टिविटी है, मतलब इंसान जो है वो दूसरों के साथ रह के, उनके संबंध में आके बहुत सारी चीज़ों को सीखता है, और उसके जो बिलीव्स है, उसके जो परसेप्शंस है वो डेवलप होने लगते हैं, और उसकी जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग है वो उसी हिसाब से बनती है। ये हो गया इन जनरल एस्पेक्ट। बट वेन एवर इट कम्स टू एजुकेशन, मतलब एक फॉर्मल अगर हम स्ट्रक्चर भी लेते हैं, तो उस फॉर्मल स्ट्रक्चर में भी तो सोशल एक्टिविटी है ना। अगर टीचर नहीं होते तो क्या ये मतलब हाँ, सारी चीज़ें तो आज अवेलेबल है ना, बुक्स अवेलेबल है, सिलेबस अवेलेबल है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी टीचर्स चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि टीचर का रोल ही है डिफ़िकल्ट चीज़ों को ईजी करके बच्चों को कम्युनिकेट करना। तो ये अगेन जो एक्टिविटी है, टीचिंग लर्निंग की जो एक्टिविटी है, इसमें लोग इन्वॉल्व है ना, तो ये जो एक्टिविटी है वो सोशल एक्टिविटी है। मतलब जो मुझे पर्टिकुलरली लेना है तो मुझे खुद पढ़ना पड़ेगा, वो मैं लोनली पढ़ सकती हूँ, लेकिन ये जो लर्निंग की प्रोसेस है, मेजर जो पार्ट आता है वो सोशल होता है।
देन बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ। प्रिंसिपल नंबर 6, लर्निंग इज़ कंटेक्चुअल। कंटेक्स्ट में ही मुझे बात करनी पड़ेगी ना। अभी जैसे हम फेज़ 2 के बारे में, एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम उसी के प्रिंसिपल्स देख रहे हैं। मैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर आपको जनरल साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी नहीं डाल सकती। यानी कि मेरा जो लर्निंग प्रोसेस है वो हमेशा एक कंटेक्स्ट से लेके रहेगा और मैं उसी कंटेक्स्ट में बात करूँगी। जब मेरा वो कंटेक्स्ट ख़त्म हो जाएगा तब मैं नेक्स्ट कंटेक्स्ट पे जाऊँगी। तो मेरा जो लर्निंग का प्रोसेस है या फिर टीचिंग का प्रोसेस है हमेशा कंटेक्चुअल रहेगा। नेक्स्ट इज़ वन नीड्स नॉलेज टू लर्न। अगर समझो बच्चे को वो लैंग्वेज ही नहीं आती है जो मैं उसे पढ़ाना, जिस लैंग्वेज के थ्रू मैं कम्युनिकेट करती हूँ, बच्चा कैसे सीखेगा। यानी कि प्री रिक्विजिट क्या है, उसे एटलीस्ट इंग्लिश या हिंदी का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, हिंदी मराठी जो भी है, तो वो अंडरस्टैंड करना उतना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, समझो वो प्ले ग्रुप से नर्सरी में जा रहा है, नर्सरी से वो जूनियर में जा रहा है, जूनियर से सीनियर में जा रहा है, तो अगर मैं उसको जूनियर में एडमिशन देना चाहती हूँ तो उसका नर्सरी में मैं एक्सपेक्ट क्या करती हूँ, उसको A to Z आना चाहिए, उसको 1 to 50 नंबर्स का काउंटिंग आना चाहिए, उसको कैपिटल लेटर जो है A to Z के वो लिखते आना चाहिए। ये मेरा प्री रिक्विजिट है। तभी जाके मैं उसको जूनियर में जो है वो स्मॉल A to Z का लिखना वगैरह वो सब सिखाऊंगी, 1 to 100 का काउंटिंग कराऊंगी, फिर लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन कराऊंगी, जो भी है। लेकिन अगर उसको प्रीवियस नॉलेज नहीं है तो क्या मैं डायरेक्टली उसको वो दे सकती हूँ? दे तो सकती हूँ, लेकिन पूरा मेहनत करना पड़ेगा, फिर से ये सारी चीज़ें लेनी पड़ेगी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि लर्निंग अगर मुझे करना है तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ प्री रिक्विजिट होता है। जैसे हम आगे बढ़ते हैं हायर एजुकेशन के लिए, तो आपको पता है कि बहुत सारे कोर्सेज़ के एडमिशन के लिए पहले आपको एग्ज़ाम देनी पड़ती है। जैसे नेट सेट के एग्ज़ाम्स है। टीचर बनने के लिए भी आपको CET देना पड़ेगा, आपको TET देना पड़ेगा। तो ये जो है ये प्री रिक्विजिट है। उससे भी पहले अगर आपको समझो ये कोर्स करना है तो आपका एक 12th पास होना, फिर 55% होना मिनिमम क्राइटेरिया। तो वो क्राइटेरिया में आप फिट हो रहे क्या, फिर उस क्राइटेरिया में अगर आप फिट हो रहे तो आपको एडमिशन मिलेगा। यानी कि मुझे एक प्री रिक्विजिट नॉलेज, यानी कि बेसिक मेरा फाउंडेशनल नॉलेज चाहिए, उसके बेसिस पे ही मैं आपको नया नॉलेज दे सकती हूँ। ऐसे नहीं कि कोई भी नॉलेज किसी भी लेवल को दे दूँ। तो हर लेवल के पर्सन के लिए, यानी कि लर्नर के लिए मुझे कुछ प्री रिक्विजिट नॉलेज जो है वो ज़रूरी देखना पड़ेगा। उसके बेसिस पे ही मैं डिसाइड करूँगी कि उसको आगे जाके मुझे कौन सा नॉलेज देना है। सो दैट वॉज आवर प्रिंसिपल नंबर 7। नाउ मूविंग ऑन टू द प्रिंसिपल नंबर 8, इट टेक्स टाइम टू लर्न। ऑटोमेटिक प्रोसेस तो नहीं है भाई कि ये बुक ले लिया और बस कर दिया, उसको कॉपी पेस्ट और हो गया। उसको तो टाइम लगेगा ऑफ कोर्स। तो ये जो प्रोसेस है टीचिंग लर्निंग की, इट टेक्स सम टाइम, एंड विदाउट दैट टाइम आई एक्चुअली कांट लर्न। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़, जैसे अगर कोई स्किल की बात करते हैं, फिजिकल स्किल की बात करते हैं, जैसे ड्राइविंग एक स्किल है, स्पीकिंग इंग्लिश इज़ अगेन स्किल, देन स्विमिंग इज़ अ स्किल, सिंगिंग इज़ अ स्किल, डांसिंग इज़ अ स्किल। सो until and unless I will not give that much time for practicing that skill, actually I can't learn. ऐसे ऑटोमेटिक तो कुछ नहीं है कि मशीन है, रोबोट है, उसमें डाल दिया डेटा और हो गया। नहीं, ये नहीं हो सकता है। तो लर्निंग के लिए टाइम लगेगा और वो टाइम हमें देना पड़ेगा। दैट वॉज आर प्रिंसिपल नंबर 8। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट प्रिंसिपल नंबर 9, मोटिवेशन इज़ अ की कंपोनेंट इन लर्निंग। यानी कि लर्निंग के लिए मेरा लर्नर जो है वो मोटिवेटेड होना चाहिए, वो की है। अगर वो मोटिवेटेड नहीं है तो वो नहीं सीख सकता। दैट इज़ व्हाट इज़ द बेसिक एस्पेक्ट, कि मैं उसको सिर्फ बता के मोटिवेट नहीं कर सकती। उसको इनर एक जो होता है वो फीलिंग होना चाहिए कि नहीं मुझे ये चीज़ पढ़नी है, नहीं मुझे उसमें एक्चुअली क्या करना पड़ेगा, मोटिवेट करने के लिए मुझे उनका इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। उनका जब इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा तब वो एक्चुअली उस पर्टिकुलर चीज़ को करने के लिए मोटिवेट होंगे, और उस मोटिवेशन के बेसिस पे एक्चुअली वो बहुत अच्छे से इफ़ेक्टिवली लर्न कर पाएंगे, एंड फिर उसमें से उनको प्रोडक्टिव रिजल्ट मिलेंगे। तो ये कंस्ट्रक्टिविज्म का जो थ्योरी है, ये पूरे जो 9 प्रिंसिपल है उसके बेसिस पे बनाया गया थ्योरी है। तो इस वीडियो के लिए ये 9 प्रिंसिपल हमने देखे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।